بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں جی ملک صاحب، ایکچولی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں، ان کے والد محترم، چاہے ان کے ساتھ آپ اتفاق کریں 100% یا نہ کریں، وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دیا، پاکستان کو نیوکلر ویپنز کا پروگرام دیا، کمپلیٹ تو میاں نواز شریف نے کیا۔ سچائی اگر آپ سچ بولیں تو آپ یعنی وہ چاہے وہ قادیانیوں کے مسئلے پہ ہو، چاہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا روکا جی، گیلانی صاحب آگے جی میں انشاءاللہ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بتائیں گے گیلانی صاحب لائن پہ نہیں آئے وہ؟ گیلانی صاحب میں آپ کو بتا دوں، گیلانی صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے آج۔ جی ہاں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، ہسپتال میں ہی گرفتاری۔ آپ شاہد صاحب ہم کلام ہیں؟ جی ہاں، میں شاہد رہبر بول رہا ہوں۔ جی، میں شاہد رہبر صاحب کا آپ سے تعارف کرا دوں، یہ رہبر اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور یہ بھی گیلانی صاحب کے ساتھ اسی طرح آزادی کے متوالوں میں سے ہیں اور اسی طرح وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ہندوستان کی بہت سی ناروا پابندیوں کے یہ بھی شکار ہیں۔ تو بہرحال آپ ہمیں کچھ تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائیں گے شاہد صاحب اس کے بارے میں؟ جی ہاں، میں کل جو 11 دسمبر بروز جمعہ کو جب ہمارے بزرگ قائد سید علی گیلانی ایک جلوس کی صورت میں نکل رہے تھے تو پولیس نے ان پر اس جلوس کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیسنگ کا استعمال کیا۔ جی، تو ایک شل سید علی شاہ گیلانی کی گاڑی کو لگا، چونکہ سید علی شاہ گیلانی آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک مطلب بہت ہی عرصے سے قلیل ہے۔ جی 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 ٹیئر گیس شل لگنے کی وجہ سے اس گاڑی وہ جو دھواں تھا اس کا ان کے سینے میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کو فوری طور پر ہسپتال داخل کر دیا گیا، جہاں پر ان کو پولیس نے اسی وقت گرفتار کر لیا گیا۔ وہ اس وقت گرفتاری کی حالت میں ہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں شاہد رہبر صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس وقت رات کے بھارت میں 2:45 بج رہے ہیں اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہم کلام ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک بہت پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، لارڈ نذیر احمد صاحب۔ وہ بھی آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ گیلانی صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اب شکر خدا کا ٹھیک ہے، اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کم از کم آج ہماری ان سے بات ہوئی ہے جی، تو اس وقت وہ ہسپتال میں ہی ہے، حلالت کی حالت میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ کچھ پوچھیں شاہد صاحب، ایک تو ہماری طرف سے آپ ان کو سلام عرض کریں سید علی گیلانی صاحب کو، اور دوسرا کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں میس گریوز کے حوالے سے اور پاسبل جینیسائیڈ یا وار کرائمز کے حوالے سے جو 2900 گریوز کا ذکر ہو رہا ہے، 8000 سے زیادہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں، اس حوالے سے آپ کا اخبار اور جو تنظیم ہے اور جو انڈیویجولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے دوسرے بھی میس گریوز کا پتہ لگ سکتا ہے یا یہ لوگ جیلوں میں ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی متضاد بیان آ رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ جو یہاں پر بہت ساری اس کے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جو شاخیں ہیں کشمیر میں، وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہت جلد اس کا یہ صحیح بتا دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ شاہد صاحب، میں جو پارلیمنٹ کے اندر اول پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کا چند دن پہلے مجھے الیکٹ کیا گیا ہے چیئرمین، تو اگر آپ اپنے جتنے بھی ساتھی بہن بھائی وہاں پہ ہیں، اگر آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کس قسم کی ڈیبیٹ ہمیں کرنی چاہیے، کون سا پروگرام یہاں پہ رکھنا چاہیے، تو یہ مشورہ مجھے آپ ای میل کے ذریعے ahmedn@parliament.uk بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر اقرا ٹی وی کے ویورز کے سامنے بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ بتائیں کہ کون سی ایسی ڈسکشنز یا پرائیورٹیز ہونی چاہیے یا لابی کا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم برٹش گورنمنٹ اور یورپین گورنمنٹس کو پرسویڈ کریں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ جلدی ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم یہ آپ کو ای میل کر کے ہی بتا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ یہ بتائیے کہ ابھی حالیہ بھارت کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ کشمیر سے فوج بلانے کا سوچ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی حالیہ جو ان کا جو بیان ہے، کیا یہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے یا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ہی نتیجہ ہے جو اس نے اعلان کیا ہے۔ جی ہاں۔
बाला शाह साहब, आप क्या इस बात को समझते हैं? आप जानते होंगे कि अभी रिसेंटली जो है वो अमेरिका के अंदर मीर वाइस फारूक साहब की मुलाकात करवाई गई है सदर जरदारी साहब से। ये हम ये समझते हैं कि ये बैकडोर पॉलिसी का नतीजा है। आप वहाँ किस हवाले से इसको किस हवाले से लेते हैं? ये जो भी ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, इसको सैयद अली शाह गिलानी जो यहाँ के लोगों के एक वाहिद लीडर है, इन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको हमने बहुत तकलीफ दी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप हमारी तरफ से और इदारे की तरफ से गिलानी साहब की खिदमत में हमारा बड़ा मुअद्दबाना सलाम कहिए। इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। लॉर्ड साहब, आपने ये सुन लिया, वो तो हिरासत में है इस वक्त, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था। मुझे पूरी तवक्को थी कि उनसे बात हो जाएगी, लेकिन यह है कि उनके जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो यानी हर मिनट के हिसाब से तब्दील किए जाते हैं। आप इस बात से तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको रेगुलरली तौर पे हरास किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। ये बड़े हौसले वाले लोग हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं, और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जितने भी लोग काम करते हैं, देखें जी, जितनी कुर्बानी मलिक साहब जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने दी है, ये एक मिसाल है। सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हम देखते हैं तो चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो या इराक़ अफ़गानिस्तान, वो तो दुनिया भर में हर रोज़ आपको तस्वीरें नज़र आती हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर देखें, मेरे जैसा आदमी, मैं ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हूँ और हिंदुस्तान ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे इस बात का इल्म है कि आपने बहुत कोशिश की थी जी। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 3 हफ्ते 4 हफ्ते मेरा जो पासपोर्ट है वो रखा, और पता नहीं उसके फ़ोटो कापी करते रहे, पता नहीं मुझे कागज़ देखने पड़ेंगे कहीं कुछ बग ही ना डाली हो, लेकिन वो उन्होंने रख के एप्लीकेशन, लेकिन उसको रिजेक्ट कर। तो अगर एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आवाज़ उठाने वाले जो हमारे बहन भाई हैं, उनका आप अंदाज़ा लगा लें कि ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बता रही हैं कि 2007 या 2900 कब्रें, मैस ग्रेव्स जो हैं, उन्होंने फाइंड करके उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जो, और वो इसके बावजूद हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये तो सवाल नहीं पैदा होता, ये हमने नहीं किया। लेकिन जो 8000 मिसिंग लोग हैं वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। एक वक्फे के लिए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस थोड़ी देर के बाद हम वक्फे पे जा रहे हैं, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि इस वक्फे के फ़ौरन बाद हम अपनी टेलीफोन लाइन्स खोल रहे हैं। आप भी टेलीफोन के ज़रिए हमारे लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब से जो सवाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से या बरतानिया में जो मुसलमानों को मुश्किलात हैं उनके हवाले से बात करना चाहते हैं, तो आप उस हवाले से उनसे बात कर सकते हैं। और आप इस हवाले से आपके सामने अभी और पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, और लॉर्ड नज़ीर साहब की जो खिदमात पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप हमें इस मशवरा दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें और लॉर्ड साहब से जो उनसे मुतालबा किया जा सकता है कि वो हमारे इस मामलात में पहले भी बड़े बेलौस होकर वो काम कर रहे हैं, और कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनके लिए हम लॉर्ड साहब को अपने इस ताउन का यानी यकीन दिला सकते हैं कि आप आइए, आगे आइए। अभी आपको याद होगा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर मसाजिद के मीनारों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, और अगर सरकारी तौर पर अगर वो आवाज़ उठी है तो लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने जो है बाकायदा तौर पर मरासत के ज़रिए ना सिर्फ उनकी मजम्मत की है, बल्कि एक मुतालबा किया है कि इस जो ये गैर इंसानी और जो इक़दाम है इसे वापस लिया जाए। ये लॉर्ड नज़ीर साहब ने अगर याद हो तो जर्मनी के अंदर हमारी एक मुसलमान मिस्री बहन को जो है वो मार दिया गया था, उसके हवाले से भी जो सबसे बड़ी आवाज़ उठी थी वो लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब की थी। हज़रात, इन सब बातों के लिए आप हमारे साथ रहिए। एक वक्फे में हम जा रहे हैं, उसके बाद आप हाज़िर होते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी सवाल करने से पहले अपना टीवी ज़रूर बंद कर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद आपसे। हज्जु अशहुरुम मालूमात। अरबी के आप स्कॉलर हैं, अरबी ज़बान नहीं बोल सकते? मैं उस मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ जिस मुशर्रफ के बारे में आजकल आप बड़े सरगर्म हैं। बहुत सारे ऐसे जनाब सेनेटर यहाँ पे लंदन में जिनके कई मिलियंस, 100 मिलियन से ज़्यादा तो उनकी प्रॉपर्टी है। अगर ये 2 खूबियाँ मुसलमानों के अंदर हैं तो फिर तैयार रहो कि तुम्हारे मुल्क पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार है। क्यों ना ये खित्ता ज़मीन खुद बड़ा होकर दिखाए, और मेरा ख्याल में इसका वक्त आ गया।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह मलिक। जिस तरह मैंने प्रोग्राम से पहले आपसे गुजारिश की थी कि हमारे साथ आज बरतानिया की एक बड़ी मोतबर शख्सियत जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और लॉर्ड साहब आपके नाम की वजह से हमारी टेलीफोन लाइन सारी चौकअप हो गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि सवालात तो बड़ी बड़ी फहरिस्त है, एक छोटा सा सवाल आपसे कर लूँ फिर हम टेलीफोन की तरफ भी चलते हैं। अभी अफ़गानिस्तान में हालिया ओबामा साहब ने मज़ीद अमेरिकी फ़ौज भेजने का जो ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं? क्या एक तरफ अमेरिका जो है अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान भी कर रहा है कि हम उससे अगले साल जो निकल जाएंगे, और 30,000 फौज भी भेज रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और ईरान के बॉर्डर के ऊपर से डिप्लॉय किया जाएगा, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, ये निकलने से पहले ये जो सर्ज है इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वैसे अमेरिकन कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका दुनिया भर में, जब भी किसी जंग में वो जाते हैं तो हार के ही आते हैं। चाहे वो आपको पता ही है वियतनाम में, उस वक्त उन्होंने वियतनाम में जब ये हार रहे थे तो इन्होंने कंबोडिया को जो है बदनाम किया कि कंबोडिया की वजह से हम हार रहे हैं। अब इराक में हार रहे थे तो इन्होंने सीरिया को बदनाम किया, अब अफगानिस्तान में हार रहे हैं तो पाकिस्तान को बदनाम शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान में डाला जा रहा है, ये इनकी पुरानी आदत है, और इस सर्ज करने का मकसद ये है कि कम से कम पहले तो आपको पता है कि कहीं जगहों से तो फौज निकाल भी नहीं सकते हैं जिंदा, क्योंकि वो अगर जब बाहर आएंगे तो उन पे अटैक्स होंगे, तो जब ज्यादा फौज होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीट करेगी, लेकिन उससे पहले उनको काम जरा दिखाना है। विंटर में आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर जंग जो है वो बहुत थोड़ी हो जाती है। समर में क्योंकि मौसम भी होता है, लोग भी बाहर निकलते हैं, और जो लड़ने वाले तालिबान हैं वो भी बाहर निकलते हैं, तो जाहिर है उसका कांटेक्ट होता है। अब विंटर में क्योंकि वो अपने पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं, घरों के अंदर चले जाते हैं, और उसकी वजह से वैसे भी विंटर में क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं तो उनकी जो जंग है वो कम हो जाती है। ज़्यादा फ़ौज भेजने से ये होगा जी कि ये फ़ौज से हमने उनको डिफीट कर दिया। साथ साथ जितने भी बड़े बड़े जनरल हैं उन्होंने कह दिया कि ये जंग हम जीत नहीं सकते। दूसरी बात उन्होंने ये कही है और ये कहना शुरू कर दिया है कि तालिबान, अच्छे तालिबान के साथ हम नेगोशिएट भी कर सकते। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आप जो हैं अमेरिका, नेटो, आईएसएफ, आप जाके तालिबान के साथ बात कर सकते हैं और पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के साथ बात करने की इजाजत नहीं मिलती। लॉर्ड साहब, यानी अभी इससे भी बात करते हैं कि हमें क्यों नहीं इजाजत मिलती? वो कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं भटफोर से चौधरी अनवर बोल रहा हूँ। जी अनवर साहब, सवाल जी। जी, सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी इस्तकामत दे, और लाल साहब को आप बहुत बेहतरीन मेहमान बुलाते हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया जी। और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हुकूमत का जो नई हुकूमत है कश्मीर के सिलसिले में, उसका क्या मौक़िफ़ है, वो कितनी कामयाब हुई है? बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम जनाब समीउल्लाह साहब, मेरा नाम सिकंदर खान है। जी सिकंदर साहब, मैं हौसलों से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जी कि कश्मीर के बारे में अक्सर कश्मीरी लोग ही बात करते हैं जी, लेकिन मेरा ताल्लुक कराची से है। लेकिन चूंकि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, पिछले साल मैं श्रीनगर गया और उसके गर्दो नवा में कोई 100-125 मील मैं घूमा फिरा, मैं और मेरी वाइफ। जी जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जनाब कश्मीरियों को हमारे पाकिस्तान की बहुत सख्त जरूरत है। बेशक जी। हमारे पाकिस्तानी भाइयों को चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हम उनकी मदद करें और किसी भी तरह से हम उनको सपोर्ट कर सके। बहुत शुक्रिया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि इतना ज्यादा उन लोगों को हमारा पाकिस्तान से मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी चीज जनाब मैं ये कहूंगा कि आपके प्रोग्राम से बड़ी नई नई खबरें मिलती हैं जो कि बाद में प्रूव हो जाती हैं कि ये बिल्कुल सही है। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि सोहाला कॉलेज के ऊपर कुछ कब्जा कर लिया अमरीकी ने या उनको दे दिया और कुछ वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, तो प्लीज जरा इस बारे में जरूर बताइएगा। और लॉर्ड साहब से कहिएगा कि कुछ हेल्प करें हमारी कि ये जो मौजूदा हुकूमत के लीडर हैं ये किसी तरह से हट जाए हमारे मुल्क से। बहुत शुक्रिया जी। बहुत जी। लॉर्ड साहब के पास अगर हिम्मत हुई तो उनसे कहेंगे एक और सवाल ले ले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से जी? मैं मुश्ताक अली शाह बोल रहा हूँ लंदन से। जी मुश्ताक साहब, मैं ऑन एयर बात कर जी जी, आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आप सवाल कीजिए। आप